مطلب یہ کہ میرا بیوی کی واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی. آپ نے تو زندگی میں آگے بڑھنے کو ترجیح دی تھی نا، تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ڈرامہ سیریل تیرے من میں آپ دیکھیں گے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے. کیا میں واقعی اس کو اپنی بات سے دور کر کے کوئی زیادتی کر رہی ہوں. وہ یہ سب سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ اسے انکل آنٹی اور سب نے بہت سمجھایا ہوتا ہے. پھر اسے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد، دنیا کے تانے سننے کے بعد، اتنا ذلیل ہونے کے بعد، ادھر ادھر خوار ہونے کے بعد اسے عقل آ ہی جاتی ہے کہ وہ یہ سب غلط کر رہی ہے. پہلے تو وہ اکیلی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے جس کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کر سکتی اور نہ ہی مرتضی کے ساتھ زیادتی کر سکتی ہے اس کو اپنی بیٹی سے دور رکھ کر. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مرتضی نے میرم کے ساتھ اپنی بے وفائی کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کیونکہ ماں بیگم جب حیا کی شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو مرتضی منع کر دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا رشتہ دیکھیں گے اس سے شادی ہوگی. ماں بیگم کہتی ہے کہ کس سے ہوگی شادی. مرتضی اس پر چپ ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حیا سے شادی میں کروں گا. حیا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کروں گا اس سے شادی. حیا تو پاگل ہو جاتی ہے یہ سن کر. اسے لگتا ہے کہ مرتضی اس سے پیار کرنے لگ گیا ہے اور پاگل ہو گیا ہے. تب اس نے ہاں کرتی ہے جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. مرتضی بیچارہ ماں بیگم کے دباؤ میں آ کر ہاں بول دیتا ہے. مرتضی بیچارے کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ ہاں بول دیتا ہے اور میرب سے بے وفائی کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ میرب تو پہلے ہی جا چکی ہے اور وہ مل بھی نہیں رہی ہے تو اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا. اتنی محبت کرنے والی اس کے گھر میں ہی موجود ہے. تب میرب کے منہ پر تھپڑ مارنے کا اچھا موقع بھی مل جاتا ہے. مرتضی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ سن کر ماں بیگم تو بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے تو اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے ہوتی ہیں. حیا تو پاگلوں کی طرح خوش ہوتی ہے. اسے لگتا ہے کہ آخر اس کا دن اسے لگتا ہے کہ آخر اس کا دن آ چکا ہے جس کے لیے وہ اتنے ٹائم سے انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی اور میرب کو گھر سے بھگایا تھا. وہ اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے. یہاں شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے اور ڈیٹ فکس ہونے کے دن قریب آ جاتے ہیں. دوسری طرف میرا واپس آنے کا سوچ لیتی ہے اور اب ہوگا ہی کچھ. اب جہاں پر سب گھر والے بھی موجود ہوں گے اور شادی کے فنکشن بھی ہو رہا ہوگا. اینڈ موقع پر جب نکاح ہونے والا ہوگا، ایٹ لیسٹ نکاح تو ہونے والا ہی ہوگا، شادی کا فنکشن چل رہا ہوگا. حیا قبول ہے کرنے والی ہوگی کہ اسی وقت میرب اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے. اور یہ سب دیکھ کر تو مرتضی تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے. وہ بہت حیران ہوتا ہے. ماں بیگم بھی حیران ہو جائے گی، یہ کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو 1 سال سے گھومتی. حیا کے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی نکل جائے گی کہ میں نے اتنی محنت کے بعد میری زندگی میں جب خوشی کا لمحہ آیا ہے تو یہ میرب کہاں سے آ گئی ہے. وہ حیران ہو جائے گی. اس پر مرتضی میرب کے پاس جائے گا اور بولے گا تم کہاں تھی، کہاں سے آئی ہو تو اتنے دنوں بعد. میں نے تمہیں کہاں نہیں دیکھا، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے. میرب تو اسے دیکھتی ہی رہ جائے گی اور سوچے گی واہ، میں یہاں خود کو کوستی رہی تھی کہ میں نے شاید غلط کر دیا، زیادتی کرتی ہے گھر سے بھاگ کر جیسے اس کی عادت ہے بولنے کی. اور یہاں تو فنکشن چل رہے ہیں، یہاں تم حیا کے ساتھ شادی کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے میں نے گھر سے بھاگ کر بہت اچھا کیا تھا. وہ ایسے بہت طنز کرے گی پر پھر مرتضی مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ماں بیگم کے کہنے پر شادی کے لیے ہاں کی تھی. مرتضی مجھے سمجھائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ماں بیگم کے کہنے پر شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا. اگر تم سوچ رہی ہو کہ
मैं ये मोहब्बत करने पर मैं मोहब्बत करने लगा हूँ और दिल से शादी कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब देखते रह जाएंगे। हया बहुत गुस्से में आ जाती है कि मुर्तज़िम, अच्छा तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, तभी तुमने शादी के लिए हाँ की है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और मेरे पे भी बरस पड़ती है। मैंने इतनी मेहनत से कहा था और आज जब मेरा दिन है, मुर्तज़िम मेरा होने वाला है, तो तुम किधर से आ गई हो। वो मीरा पे बरसती है। इसी तरह मुर्तज़िम उसे चुप करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन माँ बेगम भी सवाल करने पर मजबूर हो जाएगी जब वो पूछेगी कि तुम कहाँ से आ गई हो, तुम तो भाग गई थी ना, और ये किसकी बेटी उठा के ले आई हो। मीरा बताएगी कि ये मुर्तज़िम की बेटी है, तो इस पर माँ बेगम सवालों की भरमार कर देगी। माँ बेगम मीरा पर तुम कैसे कह सकती हो कि ये मुर्तज़िम की बेटी है और मेरी पोती है, जबकि तुम साल भर से घर से बाहर थी और अब बेटी पता नहीं किसकी लेकर आकर और ये बोल रही है कि ये मुर्तज़िम की बेटी है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सबूत दिखाओ। इस पर मीरा पर मुर्तज़िम की तरफ देखेगी और फिर बोलेगी कि मुर्तज़िम के माँ बेगम मेरे से सबूत मांग रही हैं, इनको उसे बताओ कि ये तुम्हारी बेटी है, क्या तुम्हें भी कोई शक है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इस पर हया फिर बीच में टांग अड़ाएगी और बोलेगी कि मीरत तो यहाँ से चली जाएगी। हालांकि हया को यहाँ पर सब पता होता है कि मीरत जाने से पहले क्या हुआ था सब कुछ, लेकिन फिर भी मीरत पे इल्ज़ाम लगाएगी और बोलेगी कि मीरत सबूत दिखाओ तुम भी कि तुम तो साल भर से बाहर थी और अब ये बेटी कहाँ से आ गई है। तो इस पर मुर्तज़िम फ्लैशबैक में जाएगा और सारे लम्हात सोचेगा कि मीरत के सारे होंगे और वो ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये उसी की बेटी है। यहाँ पर मुर्तज़िम मीरत की साइड लेगा और सबके सामने स्टैंड लेगा और बोलेगा कि ये मेरी ही बेटी है। मीरा पर सच कह रही है, इस पर यकीन कर लें। अब यहाँ पर हया बीच में बोलेगी कि इसका बात का कोई सबूत है, अगर है तो दिखाओ सबूत है। इस पर माँ बेगम भी पूछेगी कि फिर यहाँ मुर्तज़िम सारी बात बताएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट मीरत से किया हुआ, मीरत ने तोड़ा और करने क्यों तोड़ा, क्या गलती है थी, क्या मेरी गलती हुई थी, सारी बातें वो बताएगा। बताएगा मीरा घर से भागी क्यों थी, सारी वजह माँ बेगम के सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा कि मीरा आकर घर से क्यों भागी थी और ये बेटी किसकी है। सब सामने आ गया है। उसके बाद हो सकता है कि हया तो जैसे खुदकुशी कर ले चुके हो, उसे लगेगा कि ये सब सामने आ गया और अब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहनत के बाद मीरा को ना बसाया था और वो भी वापस आ गई है और अपनी बेटी के साथ वापस आ गई है। सब सच जानने के बाद माँ बेगम को ये सब मानना पड़ेगा कि ये उसी की होती है और ये मुर्तज़िम की ही बेटी है। माँ बेगम को तो बस अपने घर की खुशी चाहिए। मीरा माँ बेगम से माफ़ी मांगेगी और बहुत रोएगी। इस पर माँ बेगम उसे माफ़ कर देगी और खुशी खुशी उसको कबूल कर लेगी। बस यहाँ मीरा दोबारा रहने लग जाएगी। इस बात से हया को बहुत तकलीफ़ होगी कि वो सोचेगी कि अब मैंने इतनी मेहनत से जब मीरा को बाहर निकाला था और अब अपनी बेटी के साथ वापस आ गई है, अब सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। अब मुर्तज़िम फिर इसी के पास जाएगा, मेरे से मुर्तज़िम बात तक नहीं करेगा और ये बेटी के साथ आ गई। यहाँ पे हया सोचती है कि इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हया सोचती है कि इसका मतलब है कि मीरा को सिर्फ इसकी बेटी की वजह से रखा गया है। अगर इसकी बेटी ही नहीं होगी तो फिर माँ बेगम खुद इसको धक्के मार कर निकाल देगी। तो वो सोचती है कि मैं इसकी बेटी को ही क्यों ना मार दूँ, हम इसे खुद भगा देगी। यहाँ इतने टाइम बाद मीरब और उसकी बेटी आती है तो उसे लाड प्यार में रख रहे होते हैं। ये ख्वाब भी इसका चकनाचूर होता नज़र आ रहा होगा। मुर्तज़िम मीरब को बोलेगा कि तुम मुझे सजा देना चाहती थी, मुझसे बदला लेना चाहती थी, तुम मुझे सजा दे देती, मुझसे बदला ले लेती। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पास इस दुनिया से चला गया है। उन्हें सजा देने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें फिर इस सब सुनकर मीरब को बहुत दुख होगा और वो रोएगी और वो फिर से मुर्तज़िम को बोलेगी कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, कराची जाना है। यहाँ मुर्तज़िम मीरब को बताएगा कि हमने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारी माँ को अपने पास रख लें,
रखने, लेकिन तुम्हारे बाप सारे रिश्ते तोड़कर चला गया था, क्योंकि उनको लगता था कि तुम हमारी वजह से ही चली गई, हमने कोई ज्यादा जुल्म किया है तुम्हारे साथ, तभी तुम घर से भाग गई हो। फिर मुर्तज़िम मीरब को लेकर कराची जाएगा और मीरब अपनी माँ से मिलेगी और मीरब अपनी माँ से बहुत माफ़िया मांगेगी और रोएगी। मीरब की माँ भी बोलेगी तुम किधर चली गई थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर मीरब किसी सवाल का जवाब नहीं देगी और बस रोने लग जाएगी और बोलेगी मैं यहाँ आई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई थी कि मैं यहाँ के दरवाजे को दस्तक दे सकूँ और मैं यहाँ से चली गई। नहीं पता मैं कहाँ गई थी, इस तरह मुझे मेरा दिल जहाँ हुआ मैं वहाँ जाती रही और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। और सारा बताएगी। फिर माँ अपनी नवासी को देखकर बहुत खुश होगी और उसे प्यार करेगी और फिर बोलेगी कि तुम बिल्कुल तुम पर गई है मीरब, मुझे तो जीने का सहारा मिल गया है। फिर मीरब मुर्तज़िम को बोलेगी कि मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना है, मुझे घर वापस नहीं जाना। मुर्तज़िम ऐसा ही करेगा और उसको वापस वहाँ पे उसको छोड़कर वापस घर आ जाएगा। आते ही हया उस पर गुस्सा होगी और आते ही हया उस पर गुस्सा होगी और बोलेगी कि देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, मीरब के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, तुम्हारी हर बात मानी है, जैसे तुमने चाहा है मैं वैसे वैसे तुम्हारे साथ चली हूँ और अब तुम्हारी मानी है, तुमने कदम पीछे हटा लिए, मीरब के आते ही तुमने कदम पीछे हटा लिए हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मुर्तज़िम से समझाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे सिर्फ माँ बेगम के कहने पर शादी कर रहा था और अब मुझे नहीं पता था कि मीरब किधर है। मैंने मीरब को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मीरब मुझे नहीं मिली, लेकिन मीरब अकेली अचानक आ गई और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मैं सिर्फ माँ बेगम के कहने पर तुमसे शादी कर रहा था। हया को इस बात पर बहुत दुख होगा और शायद वो खुदकुशी भी कर ले।